پر پہلی کارروائی ڈی آئی خان میں کی گئی، جہاں فائرنگ کے تبادلے میں 4 بھارتی اسپانسرڈ کو ہلاک کیا گیا۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ ٹانگ میں سیکیورٹی فورسز کی دوسری کارروائی میں 2 خوارج اپنے انجام کو پہنچے، جبکہ خیبر کے علاقے باغ میں تیسرے آپریشن کے دوران 3 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شرپسندوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ فتنہ الخوارج کے ہلاک دہشت گرد مختلف حملوں میں ملوث تھے۔ آپریشنز کے دوران خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا خیبر پختونخوا میں 3 مختلف کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ 9 خوارج جانوں واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر مملکت نے انٹیلیجنس پر مبنی کارروائیوں کے دوران فتنہ الخوارج کے 9 دہشت گردوں کا کلا کواں کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی بہادری کو سراہا۔ کہا کہ دہشت گرد کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہ کے خاتمے کے لیے کامیاب کارروائیاں کرنا خوشائند ہے۔ دہشت گرد عناصر کے خاتمے، ملکی دفاع کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل رہے گا۔ صدر مملکت کا فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے کے قومی عزم کا اظہار۔ ادھر خیبر پختونخوا کی جامعات کے 25 سے زائد طلبہ نے ڈی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے ساتھ خصوصی نشست میں شرکت کی۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار اور ملی لقبوں کی گونج نے فضا کو جذبہ حب الوطنی سے بھر دیا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان جیسے فلک شگاف نعروں نے ماحول کو گرما دیا۔ جوش و جذبے کا اظہار کرتے ہوئے دشمن کو واضح پیغام دیا کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے طلبہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے سوچا کہ حملہ کریں گے اور پاکستان نے جواب نہیں دے گا۔ آپ نے دیکھا آپ سب کس طرح اپنے ملک کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے ملک کے پیچھے پورا پاکستان کھڑا ہو۔ اللہ کے حکم سے یہ آہنی دیوار کھڑی ہوئی۔ آہنی دیوار نے وہ تمام غلط حکمت عملی جو بھارت مودی نے کی تھی اس کو غلط ثابت کر دیا۔ پاکستان جواب نہیں دے گا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ سب کس طرح کھڑے ہوئے اپنے ملک کے پیچھے، پورا پاکستان کھڑا ہوا۔ اللہ کے حکم سے یہ آہنی دیوار کھڑی ہوئی اور اس نے وہ تمام اسٹریٹجک مس کیلکولیشن، وہ تمام اسٹریٹجک ایزمپشن جو ہندوستان نے اور مودی نے کی تھی، انہوں نے ایک ایک کر کے اس کو غلط ثابت کیا۔ ان لوگوں سے ہم مل کے یہ سوال کرتے ہیں جو سمجھتے تھے کہ یہاں کے عوام اور یہاں کی فوج ایک دوسرے سے دور ہے۔ ہرگز نہیں، یہ قوم، یہ فوج ہمیشہ سے ایسی تھی اور ایسی رہے گی۔ اللہ اکبر، آپ کی لیڈرشپ نے، آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف نے فیصلہ کیا کہ میں ہندوستان میں 26 جگہ پہ ان کو جواب دوں گا۔ مظفر آباد میں مجھے 7 سال کا بچہ تھا ارتضا، وہ جس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے آرڈر پہ جس کی شیلنگ سے شہید ہوا، ہم نے اس پورے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا۔ 6 اور 7 کو جن ہوائی اڈوں سے وہ جہاز اڑے تھے جنہوں نے پاکستان کے معصوم بچوں کو شہید کیا، ہم نے ان ہوائی اڈوں کو تباہ کیا۔ آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کی فوج نے کسی ایک سیولین انفراسٹرکچر کو، کسی ایک مندر کو، کسی ایک سول آبادی کو نشانہ بنایا؟ نہیں۔ ہم چونکہ پیس لونگ ہیں، ہم پیس کو پریفر کرتے ہیں، ہماری پہلی چوائس امن ہے، لیکن اگر تم نے دوبارہ یہ حماقت کی تو ہمارا جواب اس سے بھی شدید ہوگا۔ جان سے پیاری ہے ہم کو عرض بات، جان سے پیاری ہے ہم کو اس کی خاک۔ اس خطے میں، پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہوتی ہے، چاہے وہ فتنہ الخوارج کراتا ہے، چاہے یہ بلوچستان میں جو دہشت گرد ہیں، جو فتنہ کو ہندوستان ہے، یہ کون کراتا ہے؟ اس ایک ایک دہشت گردی کے ایک ایک شہید کی پیچھے ہندوستان کا چہرہ ہے۔ یہ جو مساجد کو شہید کرتے ہیں،
ये जो लोगों को जिबा करते हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका खैबर पख्तूनख्वा से कोई ताल्लुक नहीं, इनका पख्तूनों की रवायात से कोई ताल्लुक नहीं, और ये हिंदुस्तान के पैरोकार हैं। वो जो खारजी है नूर वली, वो अब ये कहता है कि इस्लाम में, शरीयत में इस बात की इजाजत है कि आप काफिर से मदद ले सके। इस्लाम में कुफर। और यहाँ आपको बताएं, खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला, शहीद तलबा की तादाद 8 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 8 मासूम जाने फितौर हिंदुस्तान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गई। खुजदार हमले में शहीद होने वाले तलबा और तलबात की तादाद 8 हो गई। मजीद 2 तलबा शीमा इब्राहिम और मुस्कान जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गई। हमले में शहीद होने वालों में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल हैं। बस पर खुदकुश हमले के पहले रोज 6ठी जमात की सानिया सोमरू, 7वीं जमात की हफ्सा कोसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शहीद हुई थीं। सानिया APS खुजदार के मासूम शोहदा की याद में ताज़ीरती तकरीब हुई है, जिसमें शहर भर के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर बच्चों ने दुआया कलमात भी पढ़े और शमअ रोशन की। शुरका की लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती दुश्मन के इस बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। शुरका ने कहा कि मासूम बच्चों के खून का हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासत ऐसे दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सबसे अगर मैं कहूँ सबसे अफसोसनाक और सबसे जो ज़्यादा जो दर्दनाक वाक़या है वो ये खुजदार वाक़या है, जिसमें हमारी मासूम बच्चियों को निशाना बनाया गया, जिसमें हमारी बच्चों को निशाना बनाया गया। स्कूल वैन पे हमला हुआ। तो ये भारतीय स्पॉन्सर्ड वो दहशतगर्दी है बलूचिस्तान में जिसकी जिसके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी बलूचिस्तान में हो रही है भारत की तरफ से, 10 मई को अपनी हार इंडिया को तस्लीम नहीं हुई, अपनी ज़िल्लत इंडिया को तस्लीम नहीं हुई, तो इस तरह हमारी मासूम बच्चों को निशाना बनाकर उसने हमसे बदला लेना चाहा। यकीनन दुश्मन ने एक बुज़लाना हरकत की, एक दर्दनाक वाक़या था। बच्चे थे, बच्चों को मारना हमारे किसी भी माशरे में जायज़ नहीं है। और एक बच्चे मासूम होते हैं, वो स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे थे, वो जंग लड़ने के लिए नहीं जा रहे थे, उनके हाथ में कलम था, उनके हाथ में बंदूक नहीं थी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे दुश्मन बुज़दिल है, हमारे दुश्मन बेगैरत है। हम अपने दुश्मन को ये पैगाम देते हैं, अगर आप लड़ना चाहते हो या अगर आप लड़ना जानते हो तो हमारे अफवाज पाकिस्तान आपकी के लिए हम वक्त तैयार है। देखें, ये जो फितना हिंदुस्तान है, इन्होंने जो एक ऐसा दहशतगर्दी का जो वाक़या किया है और मासूम बच्चों पर, सिविलियन बच्चों के ऊपर उन्होंने ये धमाका किया, ये बहुत ही एक दिल खराश वाक़या है। जो ज़ख्मी हैं वो अभी तक भी बड़ी अज़ियत में है, कुर्ब में हैं, और जिनके वालिदैन इस कर्ब में से गुजर रहे हैं, उनका तो हमें इदराक ही नहीं है कि वो किस सिचुएशन में है। इन बच्चों के खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा इंशाअल्लाह। जालिम जुल्म करने से पहले ये सोच लिया करे कि अगर अल्लाह की ज़ात का अज़ाब इन पे गिरा तो इनके साथ क्या होगा। लेकिन हम बिल्कुल पुरुमीद हैं अपनी फोर्सेस से, जो इनके आकाओं के साथ उनने किया है, ये तो उन आकाओं के गुलाम हैं। पाक बहरिया ने खसूसी वीडियो भी जारी कर दी है। वीडियो में सरबराह पाक बहरिया ने पैगाम दिया कि आइंदा भी पाक बहरिया दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। पाक बहरिया ने हालिया ऑपरेशन बुनियान मरसूस में समंदर में दुश्मन के जारहाना अज़ाइम को बर वक्त रोक कर एक मरतबा फिर समंदरी दिफा में अपनी बरतरी साबित की। बुनियान मरसूस के दौरान पाकिस्तान नेवी ने जिस पेशे वराना महारत और हिकमत अमली का मुजाहिरा किया, वो पाक बहरिया की मजबूत दिफाई सलाहियतों का आईनादार है। जब भी इस तरह के चैलेंजिंग टाइम्स होंगे, हमें अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट्स और अपने सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है, सेफगार्ड करना है। We have to deliver to the best possible efficiency.
भारत की दोबारा पाकिस्तान को फेट ऑफ ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने की साजिश। भारत की जानिब से पाकिस्तान को आलमी सतह पर माशी तौर पर कमजोर करने की साजिशें एक बार फिर बेनकाब हो गई हैं। सिफारती ज़राए और सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ झूठा आलमी प्रोपेगेंडा शुरू किया बल्कि उसे दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने की भरपूर कोशिश भी जारी कर दी गई है। वो बेबुनियाद इल्ज़ामात पर मुश्तमिल है और उसका मकसद पाकिस्तान पर आलमी मालियाती दबाव डालकर तरक्याती मंसूबों की राह में रुकावट डालना है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक भारत ने वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए मंजूर करदा $20 अरब के तरक्याती मंसूबों की शदीद मुखालिफत की है, जिससे उसके मज़मूम अज़ाइम मज़ीद अयां हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर और साबिक वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का आगाज हो गया है। खुजदार के मासूम बच्चों को निशाना बनाना इंसानियत नहीं, पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों के लिए तंग हो जाएगी। फैटअप पर भी भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिफाई बजट बढ़ाने की जरूरत है। दिफाई बजट बढ़ाने पर बार बार गौर हुआ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी यही कहा है कि अवाम पर बोझ डाले बगैर दिफाई बजट को बढ़ाया जाए। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था कि सियासी मसाइल का हल टेबल पर होता है, जलाओ घिराव से नहीं। वज़ीर-ए-आज़म 2 बार PTI को हर इशू पर मुज़ाकरात की ऑफर कर चुके हैं। PTI ने दोबारा पुरतशद्दुद एहतजाज किया तो इसकी इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा माली साल के बजट अहदाफ पर मुकम्मल इत्तफाक़ी राय न हो सका। ताहम IMF ने नई माली साल के बजट पर मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान कर दिया। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर एलामिया जारी कर दिया गया। IMF की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम के साथ आइंदा माली साल के बजट पर इत्तफाक़ राय के लिए आने वाले दिनों में मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुआशी सूरत हाल, कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद और आइंदा बजट पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात तामीरी रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐसा इक़दाम सूबे भर में बरसों से राज बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस खत्म कर दी। पंजाब में बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन रूल से 2025 नाफिज हो गई। पंजाब भर में बर्थ और डेथ की रजिस्ट्रेशन बिला मुआवजा कराई जा सकेगी। पंजाब में लेट बर्थ और डेथ के रजिस्ट्रेशन पर कोर्ट डिग्री की शर्त भी खत्म कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर कंप्यूटराइज बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट भी मुफ्त जारी होगा। शहरी यूनियन कौंसिल और म्यूनसिपल कमेटी में 7 साल तक बिला मुआवजा अंदराज करा सकते हैं। मरीम नवाज का कहना है कि शनाख्त हर शहरी का बुनियादी हक है। शहरियों के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। सर्विसेज के हसूल के लिए डिजिटल बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट लाजमी है। पंजाब के शहरी बर्थ और डेथ का बरवक्त इंदराज करवा कर अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।